Geography, Class 7, Chapter 2. Inside our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? अर्थ जो हमारा होमलैंड है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता ही रहता है, इनसाइड अंदर भी और आउटसाइड बाहर भी। क्या हमने इसका इंटीरियर कभी देखा है? ये क्या चीज़ों से बना है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन ओनियन। इसका इंटीरियर कैसा है? हमने ओनियन देखा है सभी ने, बिल्कुल उसी तरह। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside another. The uppermost layer of the earth surface is called crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम इस पिक से भी देख सकते हैं। इंटीरियर में एकदम टॉप मोस्ट लेयर को यहाँ पे क्रस्ट कहा गया है और थीनेस्ट है 35 किलोमीटर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस। ये 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासेस से ऊपर है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. It is thus called Cl. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. जो ओसेनिस्ट ये क्या चीज़ों से बना है? सिलिका और मैग्नीशियम। Just beneath the crust is mantle which extend up depth of 2900 km below the crust. ओशन जो है ये कितने डीपेस्ट है? 2900 km of the earth. The innermost layer of the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called NIF. NIF means nickel and ferrous iron. The central core has very high temperature and pressure. Rocks and minerals. Next, the earth crust is made up of various type of rocks. अर्थ क्रस्ट जो है बहुत सारी रॉक को मिला के बना हुआ है। Any natural masses of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. Natural masses of minerals उसको मिला के बनाया गया है जिसे रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर के होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. When the molten magma cool, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rock. There are 2 types of primary rocks: intrusive rocks, extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? आप क्या इमेजिन कर सकते हो लावा कैसे वॉल्केनो से बाहर आता है? लावा इज एक्चुअली फायर्ड रेड मोल्टन magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा एक्चुअली रेड मोल्टन magma है जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकल के बाहर आता है। When this molten lava comes on the earth surface, जब ये पिघल जाता है तब लावा बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस पे। इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, और ये ठंडा भी हो जाता है और तुरंत सॉलिड का रूप ले लेता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन द सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव igneous रॉक.
They have a very fine grain structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. डेक्कन प्लेट्यू हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है, ये उसी रॉक से बना हुआ है. समटाइम्स द मोल्टन मग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ. कभी कभी ये मोल्टन मग्मा जो है स्पीड के साथ बाहर नहीं आ पाता है, आउटसाइड द अर्थ नहीं हो पाता, तो ये इनसाइड द अर्थ ही कूल हो जाता है. सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक. तो हम उसी रॉक को इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं. Since they are cooled down slowly, then form a large grains. Granite is an example of such a rock. अगर ये cool down हो गया slowly and large grain के रूप में हो जाएगा, जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं. Grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made up of granite. Rocks cool down, crack and heat each other and are broken down into a small fragments. These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form a layer of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made up of grains of sand. These rocks may also contain fossil of plant, animal and other microorganisms that once live on them. Sedimentary rocks made ग्रेन, छोटे छोटे जो ग्रेनाइट जिससे बन रही है उसी ग्रेन से बनी होती है, और इसके बाद में फॉसिल ऑफ प्लांट, जो प्लांट पेड़ पौधे एनिमल्स मरने के बाद में ज़मीन में रह जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, उन्हीं से जो वापस से हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो ही बाद में चेंज होती है मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू silt and limestone into marble. Rocks are very useful to us. The hard work are used for making road, house and building. For use stone in many games. For example, 7 stone pito, hopscotch, satpu, kit, 5 stone gitti. Find out some more such game by asking your grandparents, parents and neighbors etc. Rocks are very useful to us. ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है. Hard rocks are used for making. ये हम सभी को पता है, जो हार्ड रॉक होती है उसी से रोड, हाउस और बिल्डिंग बनाने के मटेरियल मिलते हैं हमें. ये स्टोन्स हमें कुछ गेम्स भी हम खेलते हैं जिसमें यहाँ पर नाम दिया हुआ है. द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. रेड फोर्ट, जिसे हम सभी जानते हैं लाल किला के नाम से, ये क्या चीज़ से बना है, रेड स्टोन से. ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, और ताजमहल बना हुआ है वाइट मार्बल से. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिनिक मैनर. एक तरह की रॉक दूसरे तरह में अपने आप चेंज हो जाती है. कैसे, साइक्लिनिक मैनर. जैसे कि हम लोग देखते हैं वाटर साइकिल पढ़ते हैं, उसी तरह से ये रॉक साइकिल है. दिस प्रोसेस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, एक तरह की रॉक दूसरे तरह से जब बनती है तो उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं. यू हैव already learned when the molten magma cools, it's solidify to becomes igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to the sedimentary rock. When the igneous and sedimentary rocks are subject to heat, pressure, they change into metamorphic rock. आप इधर इस तरफ देखें,
ये मगमा है, ये चेंज हो रही है इग्नेशियस रॉक, देन सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, पहले सेडिमेंट्स है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है, देन इट बिकम्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. When the igneous and sedimentary rocks are subject to heat, the pressure and the change metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to from the molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. और ये वापस से जब कूल डाउन हो जाएगा तो वापस से चेंज होके इग्नेशियस रॉक्स बन जाता है. इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स अलग अलग मिनरल्स से बनी होती है. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन. और ये अलग अलग मिनरल्स से और अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से बनता है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है. सम आर यूज्ड फॉर फ्यूल. कुछ हम लोग जलाने के ईंधन के काम में लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोल मीन्स कोयला, जो हम सभी जानते हैं, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री. ये सभी हमारे ऐसे भी यूज़ में आते हैं और इंडस्ट्री में भी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी हमारी यूज़ आती है. आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, ये सभी इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ लेते हैं. इन मेडिसिन में भी हमारे कुछ काम आती है. इन फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र के भी काम में हम इसको यूज़ लेते हैं. थैंक यू. नाउ वी रीड सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स. Do you know the deepest mine in the world is in South Africa? It is about 4 kilometers deep in search for oil. Engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. जो सबसे डीपेस्ट माइन है हमारे वर्ल्ड की वो है साउथ अफ्रीका में. ये 4 किलोमीटर डीप है. इसे इंजीनियर्स ने सर्च किया था फॉर ऑयल, सर्च ऑफ ऑयल के लिए किया था. उन्होंने 6 किलोमीटर तक नीचे डीप किया था. डग बने गड्ढा किया था पूरा नीचे 6 किलोमीटर तक. टू रिच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर. रिच द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हमें सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंचना है, ये नहीं पॉसिबल, तो हमें उसके लिए एक डिग होल करना पड़ता है, वो भी ओशन फ्लोर से 6000 किलोमीटर डीप. नेक्स्ट पॉइंट इज वन क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट मेल्टन एंड 15% मेक्स द कोर. 1% क्रस्ट किससे बनता है? 1% तो इसमें रहता है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और 84% रहता है मेल्टन, 15% रहता है कोर. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, कितना है? 6371 किलोमीटर. नाउ अनदर इज वर्ड ओरिजिन. कहाँ से ये वर्ड आए हैं? इग्नेशियस. लेटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर. लेटिन वर्ड इग्निस का मतलब होता है आग. सेडिमेंट. लेटिन वर्ड सेडिमेंटम. मेल्टन सेटल डाउन धीरे थम जाना. मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोज. मीनिंग इज चेंज ऑफ फॉर्म. जैसा कि हमने देखा है, पहला इग्नेशियस जब फायर एकदम, जब मिल्टन मगमा एकदम फायर होके जब बाहर आता है, उसे हम लोग इग्नेशियस कह रहे हैं. नेक्स्ट सेडिमेंट्री. जब ये सेटल डाउन, थोड़ा ठंडा पड़ के ज़मीन पर एक रॉक ले रहा है, तो उसे कहते हैं हम सेडिमेंट्री. एंड मेटामॉर्फिक चेंज ऑफ फॉर्म. जब वो चेंज हो जाता है बिल्कुल अलग, उसे कहते हैं. नाउ कम टू द फॉसिल. द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इनटू लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल. जो भी पेड़ पौधे एनिमल्स गिर जाते हैं ज़मीन पर और उसके बाद कुछ समय तक वहीं रहते हैं और उसके बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल.